خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی اور سلامتی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں 1 جولائی کو 3 بجے طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری اور سول حکام افغان صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دیں گے۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی کے اجلاس میں چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی، وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، نون لیگی رہنما خواجہ آصف اور سینیٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی بھی شریک ہوں گے، جبکہ غفور حیدری اور مولانا اسد محمود کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ بلٹن میں اب کچھ بات کریں گے مہلک وبا کورونا وائرس کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس سے 20 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,231 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,55,657 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 914 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,45,900، سندھ میں 3,36,076، خیبر پختونخوا میں 1,37,759، بلوچستان میں 47,064 اور گلگت بلتستان میں 6,019، اسلام آباد میں 82,596، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,243 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا اور اسپتال میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے اسپتالوں میں رش کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپتالوں میں مریضوں کو بہترین سہولتوں کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ کورونا مریضوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا، شہری ویکسین لگوائیں اور ماسک کا استعمال کو یقینی بنائیں۔ ملک میں ویکسین کی کمی نہیں ہے، مزید ویکسین بھی آ رہی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کورونا کے تحت لگائی گئی پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ صوبے بھر میں تقریباً 2 ماہ بعد آج سے مزارات سمیت انڈور سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی۔ سندھ حکومت نے کورونا کیسز میں کمی کے بعد صوبے بھر میں پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب سندھ حکومت نے عید الفطر سے قبل مئی کے آغاز میں انڈور سرگرمیوں پر عائد پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ آج مزارات، انڈور جمز، سوئمنگ پولز اور اس کے علاوہ پارکس کھولے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے ہوم ڈیلیوری سروس 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ داخلہ سندھ نے نیا حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین قومی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی سے چیئرمین نیب نے ملاقات کی ہے، جس میں جاوید اقبال نے صادق سنجرانی کو نیب کی سالانہ رپورٹ پیش کی اور ملک میں جاری احتسابی عمل سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ احتساب کے عمل میں شفافیت اور غیر جانبداری ہر صورت برقرار رکھی جائے۔ تاجر اور کاروباری طبقے کے ہراساں ہونے کے تاثر کی نفی ہونی چاہیے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے کہا کہ کرپشن کے خاتمے سے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو بہتر ماحول میسر ہوگا۔ ارکان پارلیمنٹ اور کاروباری طبقے کی جانب سے مثبت تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نیب احتسابی عمل سے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت ای سی کا اجلاس آج ہوگا۔ ای سی سے اجلاس میں 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔
इजलास में कपास की कारोबारी कीमत मुतय्यन करने का जायज़ा और एविएशन एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस डिवीजन के सप्लीमेंट्री ग्रांट का जायज़ा लिया जाएगा। ईसीसी इजलास में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि इन एफसी बलोचिस्तान की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का भी जायज़ा लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि जनूबी पंजाब के लिए पहली बार अलहदा तरक्याती बजट की बुक मुरतब की गई है। जनूबी पंजाब की पसमानदगी और महरूमी के दिन गुजर चुके हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भट्टी से। जी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जनूबी पंजाब के लिए पहली बार अलहदा तरक्याती बजट की बुक मुरतब की गई है। जनूबी पंजाब की पसमानदगी और महरूमी के दिन गुजर चुके हैं। आपको आगाह कर रही हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जनूबी पंजाब के लिए पहली बार अलहदा तरक्याती बजट की बुक मुरतब की गई है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भट्टी से। जी मोहम्मद असगर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि हमने माजी के हुक्मरानों के बरअक्स जनूबी पंजाब के लिए 34% से ज़ायद बजट मुख्तस किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम के हकूक भी गज़ब किए हैं और बुरी तरह उनको नजरअंदाज भी किया है, लेकिन हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब को उसका हक वापस किया है। माजी की तरह हुकूमतों ने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए फंड दीगर मंसूबों को मुंतकिल किए। हमने जनूबी पंजाब के तरक्याती बजट की रंग पेंसिंग की है। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब के फंड ना किसी शहर को मुंतकिल होंगे और ना ही किसी और मंसूबे पर खर्च किए जा सकेंगे। असगर भट्टी आपसे ये भी जानेंगे कि तरक्याती बजट की बुक मुरतब की गई है तो कौन कौन से मंसूबे शामिल किए गए हैं? जी इसमें उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब की जो अब बुक है वो बजट की जो वो अलग मुरतब कर दी गई है और जितने भी फंड है जनूबी पंजाब के उसको मिलेंगे। माजी की जो हुकूमत थी उसने बिल्कुल नजरअंदाज किया है इसको जनूबी पंजाब को, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इसका बजट 17% था, अब वो 34% से भी जायद कर दिया गया है और तमाम जो तरक्याती काम है वो बिल्कुल उसी तरह करवाए जाएंगे जो उनका हक है। और वो नाइंसाफी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असगर भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुखालिफिन की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात जैसी शिकस्त मुकद्दर होगी। इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर का सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से तहरीक इंसाफ के शौकत बसरा ने मुलाकात की है। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही कश्मीरियों के साथ साथ फ़लस्तीनियों के भी सफ़ीर हैं। अपोजिशन जितनी मर्जी रुकावटें डाल लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे। आवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के साथ नहीं, हुकूमती बयानिए के साथ खड़े हैं। बड़ी कार्रवाई के हवाले से नाज़रीन आपको आगाह करते चलें कि सीटीडी पुलिस ने जौहर टाउन में बारूद से भरी गाड़ी खड़ी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये मरकजी मुलजिम ईद गुल को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ईद गुल ने धमाका खैज मवाद से भरी गाड़ी को जाए वकुआ पर पार की थी। मरकजी मुलजिम को पकड़कर सीटीडी पुलिस पहले से गिरफ्तार पॉल डेविड के पास लेकर आई तो इसने भी अपने साथी दहशतगर्द की शनाख्त कर ली। पॉल डेविड ने धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार ईद गुल को दी थी। पॉल डेविड ने ये कार धमाके के
7 रोज पहले गुजरावाला से खरीदी थी। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, बारूदी सुरंग धमाके में एफसी का जवान कफायतुल्लाह शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने होशाब के करीब शिकब के मुकाम पर बारूदी सुरंग बिछा रखी थी, जिससे वाटर बाउजर टकरा गया। धमाके में एफसी का जवान कफायतुल्लाह शहीद हो गया। सिपाही कफायतुल्लाह का ताल्लुक सीबी के इलाके से है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जराइम की दुनिया से आगाह करते हुए आपको बताएं कि रायगढ़ में सौतेली मां ने मुबैना तौर पर करंट लगाकर 2 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि 2 मासूम बच्चों के कत्ल का अफसोसनाक वाकया रायगढ़ के गांव बाबलियां औताड़ में पेश आया है। बच्चों की इनकी सौतेली मां ने करंट लगाकर मारा है और अपना 1 साल का बेटा लेकर फरार हो गई हैं। उसे गुस्सा सिर्फ इस बात का था कि बाप बच्चों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन पुलिस के मुताबिक 6 साला अबूजर और 4 साला ईमान शहजादी की मां का इंतकाल हुआ था, तो बाप खुरम शहजाद ने 6 माह बाद अनीला से दूसरी शादी कर ली। बाप बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना चाहता था, लेकिन सौतेली मां को फिक्र थी कि घर के काम काज कौन करेगा। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि खुशाब के नवाही गांव सरकी नौशहरा में रिश्ते के तनाज़े पर 2 अफराद को मौत की घाट उतार दिया गया। रिश्ते के तनाज़े पर नवासों ने नाना समेत मामूजाद बहन को कत्ल कर दिया, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। मुलजिमान ने बिजली ना होने का फायदा उठाते हुए घर में घुसकर हमला किया और मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़े की इत्तला मिलते ही टीम जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। वाक़े पर DPO खुशाब ने नोटिस लेते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। आपको आगाह करते चलें कि जोही में काछू को मिलाने वाली सड़क की मुरम्मत का काम गुज़श्ता 20 सालों से ताहाल ना हो सका, जिसकी वजह से मकीनों को आने जाने में शदीद दुश्वारी है। आपको आगाह करते चलें कि काछू को मिलाने वाली सड़क की रिपेयरिंग का काम गुज़श्ता 20 सालों से ताहाल ना हो सका, जिसकी वजह से मकीनों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है और अक्सर औकात जो है ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा होता जा रहा है। मजीद जानते हैं नादिर मस्तोई की इस रिपोर्ट में। जोही काछो को मिलाने वाली सड़क की रिपेयरिंग का काम गुज़श्ता 20 सालों से ना हो सका, जिसकी वजह से इलाके मकीनों को आमदरफत में मुश्किलात का सामना है। सड़क को दोनों तरफ से खंडर और शुकाफ पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हादसा भी मामूल बन चुका है। मकीन कहते हैं हमारा बिल्कुल रोड खत्म है, हम बहुत परेशान हैं। ट्रिक वाला यूसी, खासकर ट्रिक वाला यूसी के अवाम, और 14 साल से लेकर ये हमारे रोडों का काम। ड्रिगवाला मकीन कहते हैं सड़कों की तामीराती काम के लिए फंड्स भी आ चुके हैं, मगर आने वाले फंड्स को सिर्फ कागजी कार्रवाई में पूरा किया जाता है। इलाके मकीनों का कहना है देखो ये रोड की हालत, ये जो पत्थर गाज बंद का पत्थर है, ये वहां से ठेकेदार ने मिली भगत से लेके यहाँ रखा है। ये नाकारा पत्थर है, हमें ये नहीं चाहिए। हम ये अपील करते हैं मेहरबानी करके इसमें बड़ी कृषि लो। काछो के मकीनों का कहना है हुकूमत को चाहिए फौरी तौर नोटिस लेकर इस सड़क की रिपेयरिंग का काम बहाल किया जाए, जिससे मकीनों को आमदरफत में आसानी हो सके। नादर मस्तोई, स्टार एशिया न्यूज़, जोही। रिपोर्ट आपने जानी और अब आपको बताएं कि काहना में पुलिस कांस्टेबल का कारनामा। आयशा बीबी से तलाक देने के बावजूद कई महीनों जिनसे ज्यादती करता रहा, तलाक मौसर होने के बावजूद मसाहलियत का ड्रामा रचाया गया था। थाना काहना पुलिस अपने पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है, मुतासरीन इंसाफ को तरस गए। इसी हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं सैयद साजिद हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में।
अंधेर नगरी चौपट राज काना के इलाका लदे की बुलर में पुलिस कांस्टेबल तलाक मौसर होने के बावजूद कई माह जिनसी ज्यादती करता रहा। मकामी पुलिस अपने बेटी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकारी। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਵੀਦ ਅਸਗਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। नवीद असगर नामी पुलिस कांस्टेबल ने अपनी बीवी आयशा बीबी को 15 जून 2012 को तलाक दे दी और मकामी यूनियन कौंसिल से भी तलाक सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। बासर पुलिस कांस्टेबल तलाक मौसर होने के बावजूद आंखों में मिट्टी डालते हुए बजरिया तहरीरी मसालतनामा जिनसी ज्यादती करता रहा और 18 जून 2021 को झगड़े पर तलाक मौसर सर्टिफिकेट जाहिर किया और घर से निकाल दिया। साड़ी बच्ची है, ये बच्ची ना बेइंसाफी हुई है। असी शादी की सी कि इन्हें सुख मिले, अपने घर रहे खुश रहे बात रहे। असी ये तो नहीं सी क्या कि साड़ी बेटी जी उजड़ के आ जाए। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭੱਜ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। कानून का मुहाफिज ही लाकानूनियत परवान चढ़ाता रहा। मुतासरा आयशा की आंखें सीसीपी लाहौर आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब के नोटिस की मुंतजी नजर आती हैं। कैमरामैन सैयद अजान अली शाह के साथ साजिद हुसैन शाह, स्टार एशिया न्यूज, कान्हा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़मींदारों के लिए बनाई जाने वाली नई पॉलिसी की आड़ में आलाबाद कायम सरकारी सब्जी मंडी के नज़दीक ही प्राइवेट सब्जी मंडी कायम होने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। नक्शे अमन का ख़तरा। 1 साल कबल प्राइवेट सब्जी मंडी से सरकारी सब्जी मंडी शिफ्ट होने वाले आड़ती कसीर तादाद में काम कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे महर रफीक साजिद अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इलाहाबाद में सरकारी सब्जी मंडी और प्राइवेट सब्जी मंडी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। नक्शे अमन का खतरा। सरकारी मंडी में लीगल तौर पर काम करने वाले आड़ती सरापा एहतजाज। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर सब्जी मंडी चौधरी मुनीर अहमद का कहना था हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा सरकारी मंडी में अरसा 1 साल से काम कर रहे हैं। चंद सरपसंद अनासर वज़ीर आज़म की जिम्मेदारों के लिए बनाई पॉलिसी कि जिम्मेदार अपना अनाज चारदवारी करके बगैर ओपन बोली करवाए फरोख्त कर सकता है कि आड़ में प्राइवेट सब्जी मंडी कायम कर ली। सरकारी सब्जी मंडी में काम करने वाले आड़तियों ने कमिश्नर लाहौर डीसी कसूर से अपील की है कि सरकारी सब्जी मंडी के नजदीक प्राइवेट सब्जी मंडी का फौरी नोटिस दिया जाए, प्राइवेट सब्जी मंडी को खत्म किया जाए, सरकारी सब्जी मंडी में काम ना करने वाले के लाइसेंस कैंसिल किया जाए, दुकानों की नीलामी के अहकाम जारी किए जाए। जी रिपोर्ट आपने जानी। और बहावलपुर में संगदिल बाप के हाथों मुबैना तौर पर अपना नौमौलूद बच्चा कत्ल कर दिया। कत्ल करके बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया गया। इसी हवाले से मजीद अहवाल जानते हैं स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक जुल्फकार की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भावलपुर संगदिल बाप के हाथों इसका अपना ही नौमौलूद बच्चा कत्ल। भावलपुर अस्पताल में खतून के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। शोर नवीद ने बच्चा अस्पताल से उठाया और बच्चे का गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस को इतला मिलते ही पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर नौमौलूद बच्चे की लाश झाड़ियों से बरामद कर ली गई। मुलजिम नवीद को शक था कि बच्चा इसका नहीं है, इसलिए मैंने बच्चे को कत्ल किया। जी वेलकम बैक। और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। इलाकाई खबरों में आपको आगाह करें कि खुशाब की तहसील नूरपुर थल में 20,000 आबादी वाला शहर, जहां पर तालीम का निसाब 99% है, मगर फिर भी यहाँ के लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। यहाँ के लोग आला ओहदों पर फाइज हैं, मगर यहाँ पर लोगों को इलाज या किसी भी एमरजेंसी की सूरत में दूर दराज के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिस 95% मरीज रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं?
جی اس وقت میں موجود ہوں خوشاب کی تحصیل نورپور تھل کے نوائی گاؤں پیلو وینس میں. یہ 20,000 آبادی والا ایک شہر ہے مگر یہاں پر صحت کے حوالے سے سہولتوں کا فقدان ہے. یہاں پہ جو اگر کوئی ایمرجنسی بن جائے تو صبح پہلے ٹائم ڈاکٹر موجود ہوتا ہے جو 2-3 گھنٹے یہاں پہ موجود ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہاں پر کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں اگر کوئی بھی مریض ایمرجنسی کی صورت میں یہاں پر آئے جو اسے دیکھ سکے. ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں یہاں پہ لیکن ایمرجنسی کی صورت میں یہاں پر شہری کو یہاں سے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے. یہ اگر اس علاقے کی بات کریں تو تعلیم کے حوالے سے یہ ایک پڑھا لکھے شہروں میں شمار ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. یہاں پر پیلو وینس صحت مرکز جو ہے یہاں پہ کوئی بنیادی سہولت موجود نہیں ہے. یہاں پہ اگر کوئی ایمرجنسی کیس آ جائے تو ہمیں یہاں کوئی سہولت نہیں ملتی. یہاں سے مریض کو ایمرجنسی میں نورپور تھل یا جور آباد لے کے جانا پڑتا ہے. اب سب لوگوں کو پتہ ہے جو چوک روڈ سے جور آباد تک کا روڈ ہے وہ سفر تقریباً جو 30 منٹ کا سفر ہے وہ 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. تو مریض یہاں سے جور آباد پہنچنے سے پہلے ایکسپائر ہو جاتا ہے. یہاں پہ کوئی کسی قسم کی بنیادی سہولت موجود نہیں ہے جس سے کوئی عام آدمی کو فائدہ اٹھا سکے. یہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے اور یہ ہمارے جو متعلقہ اس محکمے کے افسران ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ خاص توجہ دی جائے. شکریہ, تھینک یو. جی شہریوں کو اس حوالے سے حکومت پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں صحت کے لیے یہاں پہ ایک اسپتال مہیا کیا جائے تاکہ ہمیں دور دراز علاقوں جو دور دراز اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے اس سے بچا جا سکے. اور یہ ریکارڈ میں بھی موجود ہے اموات کا جو یہاں پہ سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ, اور ایمرجنسی کی صورت میں یہاں بالکل کوئی سہولت موجود نہیں ہے. عمران اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ. ناظرین اب رخ کرتے ہیں ساہیوال کا, جہاں پر ساہیوال کے ضلع پاکپتن کے 51 ایس پی گاؤں کے شوکت علی جٹ نے سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے غریبوں کے مکانوں کو گرا کر ان کی رہنے والی چھتیں چھین کر ان کی زرعی زمینوں پر قبضہ جما رکھا ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف مزمل نواب سے. جی مزمل آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں ضلع پاکپتن 51 ایس بی گاؤں میں, جہاں پر شوکت جٹ پیپلز پارٹی کا سیکٹری ہے. اس نے غریب لوگوں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, حالانکہ ان کے پاس ان کے انتقالات بھی ہیں, فردے بھی موجود ہیں کہ زمین ان کے نام پہ ہے, اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالا ہوا ہے اور بے گھر کیا ہوا ہے. اس وقت میرا کیمرہ مین آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہیں, یہ بے گھر ہوئے ہیں اور ان کو گھروں سے نکالا ہوا ہے, اور یہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہ رہے ہیں, رہنے پر مجبور ہیں. ان کو اس طرح کیا ہوا ہے کہ جیسے ان کو قید کیا ہوا ہے, اور یہ کوٹری میں رہ کے زد و گوپ ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر ان کے جو والد ہیں اور بچوں کے جو وارث ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے معلوم کرتے ہیں بھی کن لوگوں نے آپ کی جگہ پر قبضہ کیا. یہ بتائیے. شوکت جٹ ہے جی تے باؤ جٹ ہے جی, انہوں نے قبضہ کیتا ہے. سانو بار بار دھمکیاں دیندے نے کہ جدوں قتل کر دیں گے, مار دیں گے. سارے کول کاغذ بھی ہے, زمین دے انتقال بھی ہے, سارا کچھ موجود ہے جی. لیکن وہ بس بار بار یہ دھمکیاں دیندے نے کہ اگر تسی ایتھے کسی نو لفظ بھی کہو گے نا کہ زمین ساڈی تے اسی تانوں مار دیں گے. آپ کا جو یہاں کی جو ضلع انتظامیہ ہے, پٹواری ہے, ڈی سی ہے, قانونگو ہے, یا اے سی ہے, یا پولیس ہے مقامی, وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی یہاں پہ؟ سر سب کے نوٹس میں ہے لیکن کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا. جی آپ نے سنا کہ یہ بھائی کا کہنا ہے کہ جن کو بے گھر کیا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں کی پولیس کے بھی نوٹس میں ہے, یہاں کے ڈی سی کے بھی نوٹس میں ہے, یہاں کے اے سی کے بھی نوٹس میں ہے, اور ضلع انتظامیہ پاکپتن نااہل ہو چکی ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کے جو یہ یہاں کا جو سیکٹری ہے شوکت جٹ, یہ اتنا بااثر ہے کہ اس کے آگے یہاں پر انتظامیہ کی کچھ بھی نہیں چلتی, اور انتظامیہ جو ہے اس کے آگے بے بس ہوئی ہے اور ان غریب لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہی. ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب اس بات کا نوٹس لیں اور ہمیں ہماری جگہ واپس کروائی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ عارف والا کے مختلف دیہات اور تھانہ احمد یار کو ملانے والا احد روڈ جو کہ عرصے دراز سے بدحالی کا شکار ہو گیا ہے, جبکہ دریا رنگ روڈ اور تھانہ احمد یار سڑک پر بڑے بڑے کھڈے پڑنے سے حادثات اور گاڑیوں کا خراب ہونا بھی معمول بن گیا ہے, جس سے اہل علاقہ اذیت سے دوچار ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ سٹار ایشیا نیوز ملک ابرار کھوکھر سے. جو ابرار آگاہ کیجیے گا. بالکل, میں اس وقت موجود ہوں دریا رنگ روڈ پر,
जो कि थाना आमैया रोड भी कहा जाता है। अगर इस रोड की बात की जाए तो मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। कई मौजूदात को मिलाने वाला वाहिद रोड का कोई परेशान हाल नहीं, जिसकी वजह से आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं। अहले इलाका और मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा, हर सियासी जमातों के MNA और MPA झूठे वादे करके वोट लेकर चले जाते हैं और कोई अमली काम नहीं होता। हमारे साथ कुछ इलाका मुकीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। रोड काफी अरसे तो टुटिया होया ते तकरीबन इत्थे रोजाना दी बुनियाद पे हादसे होंदे हैं ते काफी बार अपील भी की सी लेकिन किसी दी सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा साडी अपील है वज़ीर आला पंजाब तो कि इस रोड नूं जल्दी तो जल्दी तमीर किया जाए। साडियां ज़राई ट्रैक्टर ट्रालियां रोज उन्हां दे हादसा होंदे ने ते इस वज़ीर आला ते वज़ीर आज़म तो अपील है कि मेहरबानी करके ते रोड तमीर किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, अहले इलाका ने दर्दमंदा अपील करते हुए वज़ीर आला पंजाब ड्यूटी कमिश्नर पाकपतन से नोटिस लेने का फौरी मुतालबा किया है। मलिक इब्रार खोखर, स्टार एशिया। बहुत शुक्रिया मलिक इब्रार खोखर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब खबर शामिल करते हैं जामपुर से, जहां पर साबका हुकूमत में 1.5 अरब रुपए की लागत से बनने वाला जामपुर शर्की बाईपास तबाहाली का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक आए रोज हादसात का शिकार होने लगी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ तबस्सुम से। जी आसिफ तबस्सुम, आगाह कीजिएगा, आवाम का बाईपास के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जामपुर के शर्की बाईपास पर, जो कि 2010 में तामीर किया गया था, जिसको जामपुर के सुपर अपना फ्लड बंद भी कहा जाता है, जो कि 2010 में बनाया गया था, जो इस वक्त खास हालत का शिकार है। इस रोड पर जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि उन्हें इस रोड के हवाले से किन मसाइल का सामना है। जी सर, आप बताएंगे। यार जना तकरीबन ज्यादा 5-6 साल था उस रोड को, पता नहीं क्या वजह है, जना ठेकेदार खराब आना जरा बनवाने वाले खराब होने क्या आने पता नहीं है, पता नहीं कमीशन खंदे रह गए, पता क्या खंदे रह गए। असलो कार्ड को तो साथ थक के एक जेले भी कार्य नु उमले खराब है, जेले कार्य कहीं ना कि जरना हासे थे न हासे इतना दन पे आदत है भैया वो असलो के जरना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि रोड पर जगह जगह गड्ढों की वजह से आए रोज हादसात का मामूल बन चुके हैं। इस रोड पर कई इंसानी जिंदगियां ज़ाया हो चुका है और कई ज़ाया होने का खतरा है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। जी आसिफ तबस्सुम, तफसीरात के लिए बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि समुद्री से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी आबिद परवाना दौरान ड्यूटी शहीद हो गए। आबिद परवाना पाक आर्मी की जानिब से खेलते थे, दौरान ट्रेनिंग ज़ख्मी होने से दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। आबिद परवाना ने आलमी सतह पर मुतादिद मुकाबलों में हिस्सा लिया और इस वक्त आबिद परवाना को फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं मियाँ जाहिद हनीफ से। जी जाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़िज़ाएं सलाम कहती हैं। हाँ जी बिल्कुल, सामुंदरी के नवाही गाँव चक नंबर 482 का हबीब जगरामा में मोहम्मद आबिद परवाना का नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दिया गया है, जिसमें फ़ौजी एजाज़ के साथ उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मेरे साथ समुंदरी के अल फजीलत फाउंडेशन के बानी मौजूद हैं, अतीक रंधावा, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, आबिद परवाना के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान और समुद्री का नाम जो है वो रोशन किया, क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे आपने कि कैमरा मैंने देखा होगा कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन, बच्चे, ख़वातीन जनाज़गाह के बाहर शरीक थी और इतनी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और अपने पाकिस्तान आर्मी के साथ और शहदा के साथ अपनी मोहब्बत से ये साबित कर दिया है कि हम उस नौजवान को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ आए हैं। उस जवान ने अपनी ज़िंदगी में अपने इलाके का नाम रोशन किया, वतन अजीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन किया और यहाँ बच्चों की बड़ी तादाद, जवानों की बड़ी तादाद अपनी आर्मी से मोहब्बत के सबूत दे रही है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस भाई की शहादत को कबूल फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। आबिद परवाना ने अपने जो सोगवान में से 2 जुर्मा बच्चों को छोड़ा है और जो तमाम समुद्री के जितने भी शहरी हैं जिन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की, तमाम की आँख जो थी वो अश्कबार थी। जी